में आई नहीं बेटा। ऑल गुड। नमस्ते दीदी। नमस्ते। एक्चुअली लास्ट वीक नहीं कर पाई थी मैं, बट एवरीथिंग्स फाइन. I haven't been able to revise, but I'll catch up. Thank you for asking. ओके। So so far we haven't really started the Ramcharitmanas, but we have been doing the background. Anything, any takeaways from the last class or last to last class that stayed with you that you guys meditated on? Because सत्संग हम जब कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। तो कुछ सोचा किसी ने, कुछ समझा, कुछ चर्चा की, कोई बात की, कुछ कुछ आइडियाज आए, कुछ नया चीज समझ में आई? एनीबॉडी? दीदी इफ आई मे, श्योर श्योर। जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो यही भाव था कि भक्त का जो निर्मल भाव है और जो सत्संग में वो अचीव करता है या करती है, उसी से मतलब वही इज मोर इम्पोर्टेंट. सो रामचरितमानस इज नॉट जस्ट अबाउट भगवान, इट्स मोर अबाउट द भक्ट्स. I found that thought very endearing. It's been continuing in every class as in when we go forth. और जो वो निर्मल भाव है कि जो सरेंडर कर देते हैं और जो सत्संग में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उनका जो एक मतलब हाउ डू, ओके, maybe I'm lacking the words because I'm sorry, I haven't That's revised your properly. profession. How can you lack word on words? But it's just you know, जो निर्मल भाव है, जो भगवान के प्रति सरेंडर कर रहे हैं, वही एक सबसे बड़ा टेक अवे है रामायण का. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द भगवान और द कैरेक्टर्स हुआ, इट्स अबाउट द भक्ट्स. वेदर इट्स हनुमान जी, वेदर इट्स शबरी हु चकोस द bear and feeds the jhutha bear to the Bhagwan ji, and the Kevat who is like adamant, I will not take you through. It's like, you know, it's more about the bhakt than the Bhagwan. Ramayana is more, if you understand unconditional surrender, if you understand Nirmal Bhakti, if you understand surrender, that is what is the sar of this beautiful epic. So Excellent. that's what my takeaway. That's a nice one to hold on to. Excellent. Excellent. Uh, Tanya, Rajay, any thoughts, beta, from last few classes? Didi, so for me, the biggest takeaway from the last two classes was, of course, because I missed the class on 28th November, where we discussed about the difference between sadhana and satsang, and also to answer Piyush Bhaiya's question, that it can be done together also, like we can do both. And during that same week, because I didn't attend the class and I was talking to my mom, and I had just come back from Vrindavan, and I was comparing. I said कि भक्ति तो वहां पे भी है और वहां पे तो सब क्या है, मतलब from again I was, like you said, that sadhana helps you to reduce your footprint, but at the same time sadhana gives you an ego also. क्योंकि वैसे भी ये साधना जो हम करते हैं, जो मतलब जो मैं पिछले कुछ सालों से आपके साथ कर रही हूँ, मेरे लिए वही साधना मतलब साधना है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अपनी अपनी साधना की. क्योंकि मैं इतना व्रत वगैरह थोड़ा बहुत ही करती हूँ, तो जो चैंटिंग है और जितना आप बोलते हो साधना, तो मुझे ऐसे लगता है इट्स क्वाइट difficult. It's a difficult path to tread. And when I see other people, like in Vrindavan, people were dancing and they were like completely lost in that. So मैं आके ना मेरी मम्मी को बोला कि आई सेड मम्मी आप ना चैंटिंग बिल्कुल आपकी खत्म हो गई है. और दीदी ने एक और पतंजलि जो योगा सूत्रा वाली क्लास में while you when you were explaining कि if you let go of this sadhana, it will completely go till the time you don't have any guru or anybody to just kind of nudge you or bring you back. So I was just telling mama कि आप अच्छी भली साधना करते थे, and we were having this discussion कि ये कितनी मुश्किल है. तो I was just having this thought कि so even people who can't do sadhana, if they do satsang, is also good enough. So when I did the revision, I kind of, it was comforting to know कि कहीं ना कहीं अगर साधना थोड़ी सी स्लिप हो भी रही है तो भी सत्संग भी है तो भी अच्छा है. और फिर आपने जो अब मेरे लिए, सो माय बिगेस्ट
learning or what I need to work on कि जो satsang part, the classes that we look forward and I try my best to attend and do the revision is satsang for me. लेकिन वो जो आपने बोला ना कि ललिता सहस्रनाम के पहले if you can do चिंतन मनन of ललिता सहस्रनाम and विष्णु सहस्रनाम or even after chanting if you can do that, मेरा वो नहीं होता है बिल्कुल भी. मैं मतलब I am trying to do chintan on few words, like I kept thinking about anurag. Pratyaya is one word that kept thinking. I kept, like, there are few things that I can pick on, but for me right now that satsang on my, like, the whole discussion part, and you said that wo I feel ki for me, I have understood the importance of that also, because like everybody said कि जहाँ सत्संग नहीं होता, ये क्लासेस नहीं होती, sometimes हमारी साधना भी slip होने लग जाती है. तो it is important that both of them should be there, because one, like, satsang helps the sadhana also to kind of for the sadhana to take place also. So that was one difference कि मुझे लगा कि earlier I used to think कि people don't, बिकॉज मोस्टली फ्रॉम ईगो की लोग तो इतना कुछ पूजा नहीं करते हैं, इतनी डिफिकल्ट, ये चैंटिंग इज सो डिफिकल्ट. लाइक आई नो, लाइक आई मीन दिस नाउ माय दैट भाव इज कम्प्लीटली चेंज एंड आई रिस्पेक्ट एवरीबडी कि अगर कोई माय नानी ऑल्सो, वो कुछ नहीं कर सकती, वो पूरा दिन बैठ के सिर्फ ऐसे ही म्यूजिक पे भजन सुनती रहती है टीवी पे, बिकॉज दैट्स द इजीएस्ट वे फॉर हर. सो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर भक्ट्स नाउ. कि मतलब अब वो नहीं है कि मतलब लाइक आई वी डोंट पुट आवरसेल्फ ऑन अ पेडेस्टल कि हम तो बड़ी मुश्किल संस्कृत की चैंट्स करते हैं हैवी ड्यूटी, सो हम लोग कुछ ज्यादा ही मतलब. So that, I think, understanding with every class, it is getting that whole essence of bhakti and bhakt. And while I went to Vrindavan also, the only thing that I asked is mujhe bas bhakt bana do, like, and I said that, and we were in one of the kirtans, in that boat ride where the person who was doing the kirtan, he said that कि लोग कहते हैं हम इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, एक बार ये कह के देखो कि सिर्फ भक्त बना दो. And I was like, oh God, like, at least I am, like, working towards that with whatever satsang and sadhana that I'm doing. So that was like the biggest takeaway. Of course, then about the importance of gold. Ki in the last class, what you spoke about, again to answer Piyush Bhaiya's question, की importance of gold in Kalyug, तो आपने तो शुरू में बहुत पुश किया था मुझे गोल्ड के लिए. So तब सिर्फ पर्सपेक्टिव समझ में आया था, oh, I need to increase my Jupiterian energy. So because of that, I need to, I mean, I'll be honest, like, that was the idea. But when you explain the whole auspicious part of it, and this, now I keep looking at gold and, like, I'm thinking, like, I think about it that, okay, it's so important, and maybe I should, save some more money and have some more. So that was the, and the last bit where, of course, when you said that to Pulkit ka question, ki how do we tread the path of, I mean, imbibing the quality of Ramji, but how do we still deal with the world, which can be difficult at times. So that was also key. Saraswati will only protect you because hum uska wo hai. So I am trying to be very conscious, because in the last few months I could see that I was getting very angry. I don't know, because of the preparations of wedding, I was stressed out, and I used to, like, I used to be like, say things which I felt that, okay, I should refrain. So these were the 2-3 things which I kind of focused on this week. Excellent. When did you go to Vrindavan? Didi, on Monday ko मैं by chance, so my cousin, she was going. Sunday ko she asked me, she said that we are leaving 5 a.m. in the morning tomorrow, would you be interested? I said, yeah, why not? तो मैं तो ऐसे ही चली गई कि मैंने कहा मैं बहुत कभी वृंदावन बचपन में गई थी यार. और आपने, अच्छा, इंटरेस्टिंगली संडे को जब पातांजलि योगा सूत्रा की क्लास थी, नॉर्मली यू डोंट मेंशन वर्ड, लाइक आपने उस दिन उस क्लास में मैंने शाम को हाँ करी, और आपने शाम को आप बात कर रहे थे कि अब जब व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट द एनालॉजी ऑफ ड्रीमर एंड द ड्रीम स्टेट, आपने बोला कि अब ड्रीम्स में कोई वृंदावन चला जाए, अयोध्या चला जाए. आई सेड आई मीन इट इज सो सरियल कि एकदम से मैंने हाँ करी. और आप नॉर्मली वृंदावन, आप उस पतंजलि योगा की क्लास में आप इतना नहीं जिक्र होता, तो मैंने कहा ये भी कुछ तो कनेक्शन है. Nice, nice, nice. Piyush, any thoughts, beta? नमस्ते दी. Namaste, Raja. Hey, everybody is doing well, right? ये थोड़ा अमावस्या काली है. I hope everybody is doing okay. No fighting. Take care of yourselves. थोड़ा सा मुश्किल है 2-3 दिन में, और मतलब 1 महीने में तो सब ठीक ही हो जाएगा, जब देवता जग जाएंगे. पर
try your best to avoid all negative situations in this time. आज अमावस्या है, थोड़ा सा शांति बना के रखें घर में। तो ओके जितना एक्सपोजर जो अगर किसी का हो रहा है, ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीर्थ यात्रा बढ़िया है, उसके अलावा साधना बहुत अच्छी है, उसके अलावा ज्यादा कुछ करना नहीं, शांति से बिल्कुल घर में रहे। सो आई एम श्योर इट इज नॉट इजी फॉर एनीबॉडी, बिकॉज ये हार्ड टाइम होता है, कुछ ना कुछ सबके यहाँ हो रहा होगा, बट यू गाइस जस्ट टेक इट इजी। ओके दीदी, आई मीन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ बहुत सारे मेरे नोट्स हैं, बहुत सारे हाईलाइटेड नोट्स हैं, बट आई थिंक वन थिंग विच हैज स्टेड थ्रू आउट इज यू नो जो मोनिका जी ने भी कहा कि आई मीन वी आर लकी दैट हम इस लेवल पे बात कर पा रहे हैं और इस लेवल को समझ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज कलयुग में, जैसे आपने पिछली क्लास में कहा ना कि साधना, जप, दान, इन सबसे उतना फल नहीं मिलेगा जितना नाम जपने से मिलेगा। और हमारे लिए तो नाम जपने के अलावा आपकी वजह से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि किसका नाम जपो, राम नाम जपो, तो एक तो फल भी मिलेगा और मन भी निर्मल होगा। तो आई थिंक दैट्स अ रियली रियली बिग बिग टेक अवे। नॉट दैट बाकी साधना छोड़ देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हालांकि मेरी उतनी नहीं हो रही है, आई विल एडमिट। बट आई थिंक या आई एम enjoying my philosophical journey with you, and राम नाम का जप, hopefully I'll be a better person in in years and decades to come. Excellent, excellent. You're not a bad person now also. I'm continuously trying to do better. Okay. Any thoughts, Chiku? Any thoughts? आज बड़े दिन के बाद दिखी। नमस्ते जी। नमस्ते। तो लास्ट क्लास से एक्चुअली हर बार हर क्लास में आप कहते हो कि अपनी इंद्रियों को सरेंडर में रखना है, लेकिन लास्ट कुछ टाइम में मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि सरेंडर में रखने से मन कितना शांत रहता है। पहले कंट्रोल करने के ऊपर ज्यादा फोकस रहता था, नहीं नहीं ये नहीं करना, नहीं वो नहीं करना, ये ठीक नहीं है, जो हमारे मन में रहता था ना कि ये चीज ठीक होती है, ये चीज गलत होती है करना, तो उसमें बहुत दिक्कत होती थी। हर वक्त कुछ गलत होता था तो लगता था कि ओहो ये हो गया, तो मतलब एक सेटबैक सा रहता था। लेकिन जब से अब सरेंडर करना आता नहीं था एक्चुअली, कि सरेंडर करने कैसे होता है, तो जब कुछ सिचुएशंस लाइफ में ऐसी आई तो लगा कि चलो ठीक है भगवान, जो आपकी मर्जी जैसा है ठीक है, आपको आपने जो लाया सब अच्छा, सब अच्छा। तो पता चला कि मतलब रियलाइज हुआ कि कितना इजी है अपने आप को कम रख लेना, किसी चीज में बहुत दुखी नहीं रहना। तो ये चीज सबसे अच्छा टेक अवे रहा मेरा, कि सरेंडर सीखा है कि एक्चुअली सरेंडर किस तरह करना है, और very सरेंडर का कितना बेनिफिट है। बेनिफिट तो गलत वर्ड है, बट मतलब मन एकदम धीरे 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 अनुरागी हो ही जाएगा, क्योंकि कोई डिजायर्स ही नहीं रहेंगी, ना सुख अफेक्ट करेगा ना दुख अफेक्ट करेगा, तो सब लोग के लिए हम सम रह पाएंगे और अपने लिए। हाँ, very nice. That's a good takeaway because सीखना हर समय करना पॉसिबल नहीं होता, मगर बार बार अपने आप को रिमाइंड करना कि चलो ठीक है, भगवान ने कुछ खराबी चीज हो रही है, कोई अच्छी तो हो नहीं रही, पर भगवान ने कुछ सोच के किया होगा, कुछ सोच के किया होगा। बिल्कुल। तो खराब सिचुएशन अगर हम भगवान भगवान बोल के निकाल दें तो उससे अच्छा क्या बात अ, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और फिर ये है ना, जहाँ पे कृपा राम की हो, तो तो जिसकी ऊपर राम जी की कृपा है, तो राम जी कृपा बनाए रखें तो खराब कुछ होगा ही नहीं। तो वो भी है। बट यस, जब खराब टाइम आता है तो उसमें किसी भी तरह से, चाहे
इसी तरह से कि आप भगवान भगवान बोल रहे हो कि जो भी किया आपने अच्छा ही किया होगा, जो भी किया सोच के ही किया होगा, जो भी किया सोच के ही किया होगा। बिल्कुल दो बिल्कुल। चीजें होती हैं उससे, एक तो आप सेल्फिश नहीं बनते, आप भिखारी नहीं बनते, क्योंकि हम्म। अदरवाइज द अदर ऑप्शन इज कि जब परेशानी आती है तो आप भिखारी बन जाते हो, भगवान ये ठीक कर दो, भगवान इतनी परेशानी दे दी, ये ठीक कर दो भगवान, अब एकदम भिखारी बन जाते बिल्कुल। और इस बार श्रिंका, मतलब एक कुछ ऐसा रहा था, लेकिन मैं एक बार भी नहीं बोल पाई कि भगवान जी प्लीज ये ठीक कर दो या ऐसा कर दो। एक बार भी नहीं, नहीं आप जो कर रहे हो सब अच्छा कर रहे हो, कुछ गलत है ही नहीं। हैं। तो वो इतना बड़ा चेंज मुझे अपने अंदर लगा, नहीं तो हर बार भिखारी की तरह मांगती रहती थी। करेक्ट। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है कि एक तरह से ग्रीड या वासना आपके अंदर से निकल जाती है, और भगवान फिर भी साथ रहते हैं। भिखारी बनने में भी भगवान साथ रहते हैं, ऐसा नहीं है कि भिखारियों के साथ बिल्कुल। भगवान नहीं रहते, हाँ जी। उनके साथ भी रहते, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसमें एक तो भिखारी भी नहीं बनते और भगवान साथ भी रहते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। तो थोड़ा मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट स्पेशली व्हेन लाइफ थ्रोज आउट डिफिकल्ट सिचुएशंस एट यू, यू कांट ऑलवेज रिमेन, समभाव हमेशा नहीं रहता, नहीं रहता है। कंपैरिजन हो जाता है, सोसाइटी हो जाती है, हमें लगता है हमारे साथ हम्म। क्यों हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो हम्म। बट फिर भी तुमने बट बार दुर्वासा बार की है ना। दिमाग कहता है कि नहीं, विचलित नहीं होना है, कुछ नहीं कुछ नहीं, Yeah, सब ठीक। I think it's a great thing to take away. It's a great state to be in, and I'm very glad that you brought it up because हम भूल जाते हैं कि ये हम हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको, थोड़ा थोड़ा, स्पेशली ये रामचरितमानस के क्लासेस के बाद हम और इसको प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, क्योंकि वो हम निर्मल हाँ मन की जितनी बिल्कुल। चर्चा करते हैं, we are able to surrender a lot easier and a lot more. We don't always achieve it, but we are able to surrender a lot easier and a lot more, and we are our greed is going down definitely by every class. कि हर सत्संग के बाद ग्रीड थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, डेफिनेटली कम हो, हो जाती। क्योंकि हम भक्तों की चर्चा करते हैं तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, उस दिन तो पूरी खत्म हो जाती है, अगले दिन भी थोड़ा कम रहता है। Nice, nice. कौन बचा? नेहा, तूने कहा था तूने रिवीजन किया है बेटा, तो कुछ बोलेगी? हाँ दीदी, मैंने रिविजन किया था, तो मैंने क्लास 10 ही की थी, बट आई डिड रीड, लिसन टू द क्लास एंड, तो बेसिकली दीदी मेरे को वो जो आपने एक्सप्लेन किया था, गोल्ड एंड कलयुग एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्ड, सो बेसिकली मेरे को एक चीज विच लिटिल फनी, जो मैंने आपको, जब मैं आपसे वन वन भी बात की थी, मैंने आपसे बोला था, बट आई फील जैसे दीदी, जैसे हम एक रोल के लिए जैसे हम प्रिपेयर करते हैं, फ्रॉम हाउ यू ड्रेस अप टू हाउ यू हैव टू एक्ट टू हाउ यू हैव टू थिंक, आई गेस टू बी अ भक्त ऑल्सो, I guess one of the important criteria is to wear gold so that you can get those qualities in you. Because gold, obviously, if you wear, then आपने बोला था कि जो भी हम मेटल में पहनते हैं, that gets absorbed in our body. So I guess wearing the right metal will help us to be the right person that we want to be. Excellent. And like I हाँ, said, it's not easy to wear so much gold these days. हाँ, Uh, right, right. society is not going to appreciate you dressing up like that. There were days, भाई पुराने जमाने में लोग कितना कितना सोना पहनते थे। हम जब फोर्ट्स में जाते हैं तो हमें दिखता है कि जो पालकी लेके जाते थे, क्योंकि लड़कियां चल नहीं सकती थी, इतना किलो गोल्ड होता था उनके ऊपर, कि रानियां चल नहीं सकती थी, तो उनको पालकी में बिठा के लेके जाते थे। तो और ये ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है ना, कब के बने फोर्ट्स ना, 100 200 200 300 ईयर्स। सो इतनी मनोस्थिति चेंज हो गई, इतना हम लोग चेंज कर दिए अपने आप को, तो ऑब्वियसली इसलिए भी बहुत फर्क पड़ा है। वेरी नाइस, एक्सेलेंट, एंड आई लव द वे यू सेड कि बिल्कुल भक्त बनने के लिए क्या पहनना है ये भी बहुत जरूरी है, उसके ऊपर भी ध्यान रहना चाहिए। वेरी नाइस। ममता, एनी थॉट्स बेटा? Good to see you. Didn't see you last week. All well? या आई वॉज नॉट फीलिंग टू गुड लास्ट वीक दीदी। आज हाँ, भी तबीयत ठीक नहीं, पर मैं आज तो हनुमान सुंदर लग टेम्पल रही है, होके आई, बिंदी लगाई हुई। हनुमान मंदिर होके आई। वेरी,
वेरी नाइस। चलो पंडित हनुमान ने चालीसा बड़ा हमने तिलक करा लगा दी। लिया। वेरी हाँ नाइस। मैंने कहा हनुमान चालीसा हमने करा दी। हाँ। इसके लिए हनुमान जी के मंदिर आज पता नहीं कितने, आई थिंक मंथ्स के बाद मैं गई हूँ दीदी। आई डोंट नो हाउ आई वाज कैरिड ओवर देयर। आई नो आई नो। इट्स लाइक अ मैजिक व्हिच कॉल्ड मी एंड आई वेंट, भगवान एंड आई हैड अ भगवान के वेरी पास वेरी रहो ना, डिफिकल्ट राम डे। जी के पास रहोगे तो हनुमान जी अपने आप आपके पास रहेंगे। हाँ। नाइस नाइस नाइस, एक्सेलेंट। दीदी, एनी why थॉट्स? can't we wear copper and other metals? You can wear copper and iron. Those are all good metals to wear. I was just giving the answer to Piyush's question. These are all good metals to wear. You can wear copper, you can wear iron, you can wear आयरन तो zinc. शनि हो जाता ना दीदी। वो भी पहन सकते हैं क्योंकि आयरन की हमें जरूरत है ना, शनि के बिना भी काम नहीं होता अच्छा। है ना। शनि इज रिक्वायर्ड ऑल्सो। अगर शनि नहीं So आएगा तो how will धर्म you कैसे wear खत्म होएगा? iron, दीदी? How will you wear iron? ये अष्ट धातु में, पंच धातु में बनाते हैं ना सारे। हाँ हाँ। हल्का हल्का डाल देते हैं उसमें। इट्स वेरी गुड। I'm wearing सात धातु हाँ बहुत अच्छा, तो रिंग। उसमें आयरन होगा ना बेटा। हाँ हाँ। वेरी नाइस, एक्सेलेंट। हिना एनी थॉट्स बेटा? तू पहुंच गई घर। म्यूटेड है राजी। हाँ जी, I just got back home. Uh, नाइस quite बट honestly, hello, can you hear me? कैन हियर यू। आई सेड नाइस बटरफ्लाईज। Thank you so much. Today I felt butterfly. नाइस। नहीं, quite honestly, मैं ऑफिस में थी लास्ट ट्यूसडे, तो I couldn't attend, but last week was a bit hectic, तो मैंने रिवाइज नहीं किया, but I'll get to it. नो प्रॉब्लम बेटा। जी। शालिनी थॉट्स राजे। हाँ नमस्ते दीदी। नमस्ते राजे। तो मोस्टली तो सबने कवर किया, बट मेरा मेन टेक अवे तो नाम जाप वाला था कि क्योंकि हम कोई और चीज अच्छे से कर ही नहीं सकते प्रॉपरली स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। ना हम यज्ञ कर सकते हैं, ना हम व्रत कर सकते हैं जो प्रॉपर तरीका उससे, क्योंकि वो सब आधा अधूरा होता है। इसलिए तो ये वाला जो स्ट्रेस आपने दिया था कि क्योंकि बाकी चीजें हम अनुष्ठान कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बट वो क्योंकि प्रॉपरली नहीं होता, इसलिए नाम जाप इज द बेस्ट। सो दैट एंड एक खुशबू ने आपसे बात की थी नेगेटिव लिस्ट की। खुशबू के क्वेश्चन हमेशा में तो आपने कहा था कि आप हमेशा हर क्लास में बोलते हो अपनी लाइन बड़ी करो, वो दूसरी अच्छी वाली लाइन, तो अच्छी चीजों की भी लिस्ट बनाओ। बिल्कुल सो बनानी। दैट एंड ऑफ कोर्स पुलकित को जो आपने बार बार बोला, तो सरस्वती को खराब नहीं करना, तो दैट कीप्स रिंगिंग नाउ बिकॉज हम लोग सब कोई ना कोई स्टेज में कर ही लेते हैं सरस्वती को खराब, कोई ना कोई। तो दैट कांस्टेंट रिमाइंडर इज अ गुड रिमाइंडर टू हैव। एंड ऑफ कोर्स गोल्ड का इम्पोर्टेंस। तो देन व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, आई वाज सेइंग कि दीदी कीप्स टेलिंग एवरीवन टू वेयर गोल्ड, and of course I've started wearing the chudi and earrings because of that only. But आपने जो इतना डिटेल में सब गोल्ड का बताया, वो तो हमें पता नहीं था, and it just changes your perspective because we are not in surrender, in the sense, in the true surrender that we'll just accept when someone says something to us. We need that proper explanation and that proper tark to really absorb it to that level. So that was constant, like that we are whatever we might say, but we are not really in surrender. चलो डोंट बीट योरसेल्फ टू मच, इतनी भी बात कौन सुनता है। खुशबू एनी थॉट्स बेटा, या बच्चे सुला रही है? नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी ने सब कवर कर लिया, एंड हमने शालिनी भाभी हैज शेयर्ड एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू से, सो लेट्स सेव टाइम। एक्सेलेंट। और एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, एक्सेलेंट। एक भक्त की चर्चा दीदी हमेशा। आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी। So, in Gita class also you mentioned that to do things routine wise, and this thing is really resonating reverberating in my head. To do things routine
routine. So so since childhood, I've been doing chanting like a routine only. I feel I always used to tell myself कि I तो don't have any bhakti. It's just मम्मी ने बोल दिया करना है तो कर रहे हैं. So uh, and this week I observed myself while chanting the Sahasra Nams. So I was like, okay, I just have, and I always have time crunch, and I always know that मेरे पास अब ये 2 घंटे का window है, and I have to finish my chanting in these 2 hours, and I just focus on फटाफट फटाफट chant कर लो क्योंकि ये 3 बजते ही तो Advik will enter the house and you just can't sit. So ये जो हम जब हम ये बस ये जो ये माइंड में गोल रख के करते हैं ना कि बस 2 ही घंटा है फटाफट फटाफट कर लो, सो वो भक्ति से तो होता नहीं है, तो वो रूटीन भी नहीं लगता मुझे. तो मुझे आई एम थोड़ा कंफ्यूज है. तो जस्ट करना के लिए करना, मतलब मेरा नोशन यही है कि मुझे बचपन से यही लगता है कि मेरे में मेरी मदर जैसी भक्ति तो है नहीं, और आपकी क्लास में भी आके लगता है कि भक्ति का तो भाव ही नहीं है, जस्ट करना है तो कर रहे हैं. तो ये क्या है? इज इट रूटीन, इज इट व्हाट यू सेड कि बस बेटा कहानी सुने ना, भरत लाइक व्हाट महाराज इज जी इट? के भी राम मिल गए, है ना. चप्पल मारते मारते भी भगवान शिव ने दर्शन दे दिए. ये कहानियां इसीलिए बनी है, आपके इसी सवाल को आंसर करने के लिए बनी है कि कोई बात नहीं, अगर तुम चप्पल भी मार रहे हो ना भगवान को, चप्पल की तरह ही तो कर रहे हो ना. जैसी चैंटिंग कर रहे हो इधर, ताड़ ताड़ तोड़ तोड़, जल्दी 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 जल्दी, चप्पल मारे भगवान को. चप्पल भी मार रहे हो तो भी भगवान दर्शन देंगे. रोज करो, है ना. उसके लिए भक्ति, भक्ति अलग चीजों में. जब जो साधना का टाइम है उसमें चाहे चप्पल मार के साधना करो, चाहे प्यार से करो, चाहे आराम से करो, चाहे निर्मल मन से करो, चाहे मत करो. साधना के टाइम में साधना करो, कैसे भी कर लो उसको पूरी करो. हम्म. और बाकी टाइम में भक्ति रखो. जो भक्ति की बात है वो साधना के लिए इतनी जरूरी नहीं है, जो कि इस बाकी पूरे द रेस्ट 2 घंटा छोड़ के जो आपके बाकी के 10 घंटे हैं, है ना, 10-11 घंटे, उसमें भक्ति रखो. या उसमें भक्ति कैसे रखेंगे? उसमें सारे टाइम भगवान को याद करते करते, जैसे कुछ खराब हो रहा है तो भगवान भगवान को याद कर लो, कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान को याद कर लो, कुछ खाने जा रहे हो तो भगवान को याद कर लो, कुछ नया पहनने जा रहे हो तो भगवान को याद कर लो, नया नहीं है पहनने के लिए तो भगवान को याद कर लो, बटरफ्लाईज मन में आ गई तो भगवान को याद कर लो. सो जस्ट द रेस्ट ऑफ योर 12 आवर्स और 11 आवर्स इज फॉर भक्ति. साधना के टाइम में भक्ति साध में एक कंडीशन डाल दोगे तो साधना भी नहीं होगी. उस समय चाहे जूते चप्पल मार दो भगवान को, तो खत्म करो उसको. जैसे पीयूष आता नहीं है ना, मेरे को रोज दिखता है, रोज कभी मैं वासना हो जाती है मुझे जब मैं देखती हूँ कौन कौन आया कौन कौन नहीं, तो मैं बंद करके रखती हूँ, पर रोज उसको देखती हूँ. एक सिर्फ नाम पी में पी सर्च करती हूँ, आया कि नहीं आया, आज भी नहीं आया. ये साधना नहीं करता, मैं उसको रोज नोटिस करती हूँ. तो ये चप्पल मार के भगवान को आ जाओ. हम्म? साधना कर लो अपनी, 2 घंटे की नहीं 1.5 घंटे की कर लो, 1.5 घंटे की नहीं 1 घंटे की कर लो, किसी भी तरह से पाट 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 करके नाम ले लो उतने. एंड बाकी टाइम भक्ति करो, बाकी पूरा दिन भक्ति के लिए. हम्म. कुछ अच्छा हुआ तो भक्ति, कुछ खराब हुआ तो भक्ति, ये भक्ति के लिए. डज दैट आंसर योर क्वेश्चन बेटा? तो उसमें भक्ति का कोई लेना देना नहीं है. जब तुम बाकी 11 घंटे भक्ति के साथ रहोगे ना, तो वो 1-2 घंटे में भक्ति आएगी. जब 11 घंटे भक्ति नहीं है तो वो 1-2 घंटे में कहाँ से भक्ति आएगी? डज दैट मेक सेंस? यस एनीबॉडी? यस. जब वो भक्ति बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू ना, जब जब आप पूरे दिन ही भक्ति कर रहे हो, तब आपके वो 2 घंटे में भी भक्ति आएगी. जब भक्ति कहीं आसपास ही नहीं है, भगवान को वो 2 ही घंटे में तुमने याद करना है, उसमें तुम्हें दुख हो रहा है कि मैं इतनी गंदी तरह से याद कर रही हूँ, तो ये दुख करने से कोई फायदा नहीं है, तो तुम कैसे भी कर लो. है. जी दीदी. एनी अदर क्वेश्चन?
तो चलो कहानी सुनाते हैं, मूड लाइट हो। एक हमने आम कहानी जो भगवान के एक भक्त की सुनी, वो सुनी सुदामा जी की। हम्म, और बहुत बार इसके ऊपर चर्चा करते हैं हम, है ना। सुदामा की कहानी सुनी सबने। क्या हुआ, चने दिए थे गुरु माँ ने, चने भगवान सुदामा के पास रह गए, भगवान बिना चने के रह गए, सुदामा ने चने खा लिए। और चने पूरे खा के जब भगवान को नहीं दिए, भगवान भूखे पेट रहे, इसके लिए सुदामा को इतनी दरिद्रता आ गई। और दरिद्रता बहुत ज्यादा आ गई, तो एक मुट्ठी चावल देके, एक पोटली चावल देके उनकी पत्नी ने उनको भेजा कि तुम द्वारका जाओ, तुम्हारे दोस्त इतने बड़े राजा हैं, एक बार जाओ तो सही, कुछ बोलने के तो खाली हाथ कैसे जाओ। तो एक पोटली में चावल दिए, और चावल लेके सुदामा गए भगवान के पास। और भगवान ने चावल जब खाने लगे, तो एक खाया तो सारा घर भर दिया, दूसरा निवाला खाया तो सारे आगे पीछे के सब कर्म ठीक कर दिए, तीसरा खाने लगे तो रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया, भाई मैं मेरे को भी भेज दोगे क्या, रुक जाओ। हम्म। तो ये कहानी हमने इतनी तो सबने सुनी है ना, हाथ खड़े करो if somebody doesn't know this story. You guys don't know the story, or you know the story? Know the story. Okay. पीयूष, you know the story बेटा? हाँ, ओके। सो इतनी कहानी तो सबने सुनी। ये चीज किसी को पता नहीं है कि जब सुदामा और कृष्ण जी की ड्यूटी लगती थी, ड्यूटी लगती थी कि गुरुकुल में कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो बिना काम किए आपको गुरुकुल में नहीं रह सकते, गुरु की कुछ ना कुछ सेवा करनी पड़ती है। तो हर बार ये टर्न टर्न से ड्यूटी लगती थी। भगवान को गाय ज्यादा पसंद थी, उनकी गाय की ड्यूटी थोड़ी ज्यादा लगती थी, जंगल वाली, कि गाय चराने ले जाओ। तो ड्यूटी लगती थी, और सुदामा उनके सबसे प्रिय मित्र थे। और हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि सुदामा ने भगवान से चोरी कर ली, सोचते ना, सुदामा ने भगवान से चोरी कर ली। तो उस दिन, जिस दिन की ये बात है, जब ये कहानी घटित हुई, जिस दिन के ना, दिस मेन डे वेयर सुदामा ate all by himself and didn't give anything. He's a very dear, 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 dear friend of Lord Krishna. Lord Krishna is a very, very dear friend of Sudama. इतने प्यारे दोस्त हैं कि जब भगवान मिले तो पानी लिया ही नहीं, हाथ में पांव रखे और रो रो के धो दिए। इतने आंसू भगवान कृष्ण ने बहाए कि सुदामा ना, पुराने जमाने में पैदल चल के आते थे, पांव धुलवाने का एक रिवाज था। तो भगवान ने सुदामा को बिठाया, कहाँ बिठाया, अपने आसन पे बिठाया ना, जो सिंहासन है उस पे बिठाया, और पांव हाथ में लिए, और जल साथ में ही रखा रह गया, भगवान ने पूरे पांव धो दिए। इतने आंखों से आंसू बहाए, इतने अच्छे दोस्त थे। तो इसमें बहुत गहरा विचार करने की जरूरत है कि इतने अच्छे दोस्त भगवान जिसके हों, जो सखा भाव में इतनी पूजा करता हो, रहता हो। सखा भगवान के भाव है ना, सखा भाव में इतना रहता हो, तो उसके साथ सुदामा ने ऐसे कर दिया होगा, अकेले खा लिया होगा। ये सीख कुछ सही नहीं है ना, सही लगती है क्या, अकेले खा लो, भगवान से चोरी कर लो, कुछ तो गड़बड़ है ना इसमें, गड़बड़ी है। तो जिस दिन की ये बात है, उस दिन पुराने जमाने में आश्रमों में ज्यादा कुछ रहता नहीं था। कौन थे गुरु, कौन थे, कोई बता सकता है? चीकू। संदीपनी ऋषि वेरी जी। गुड, संदीपनी ऋषि। और संदीपनी ऋषि के आश्रम में ज्यादा नहीं, राजा कभी कभी दे देते थे, कभी गांव वाले दे देते थे, कभी नए जो लोग आते थे तो दान दान के साथ अपने बच्चे को देते थे, ऐसा करके कभी होता था, कभी नहीं होता था। तो उस दिन बाल भोग में
बनाने के लिए कुछ नहीं था। बाल भोग बोलते हैं बच्चों का जो खाना बनता है उसको बाल भोग बोले। ब्रह्मचारी का खाना बनता है उसको बाल भोग बोलते हैं। तो बाल भोग में एक ही टाइम खाते थे और एक टाइम के लिए भी कुछ नहीं था। तो गुरु माता ने जितना वो थोड़ा सा चना वना जो भी झाड़ झूड़ के निकला कि ये बच्चे दूर जाएंगे, इनको सुदामा को वो पोटली दे दी। और जब वो पोटली दे दी सुदामा को, ये सुदामा और कृष्ण जी गए नहीं थे आश्रम से, उतने में दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि आए, और दुर्वासा ऋषि जब आते हैं तो उनका सत्कार किसी तरह से तो होता है। तो गुरु माता ने बोला, प्रभु आप आए तो पर कुछ भी नहीं है खाने के लिए, मैं आपको कुछ परस नहीं सकता। तो दुर्वासा ऋषि ने अपनी शक्ति से देखा कि एक पोटली चने की है आश्रम में। कैसा कैसे कि कुछ नहीं है, एक पोटली चने की है। दुर्वासा ऋषि ने बोला कि जो इसको खाएगा वो पूरी जिंदगी दरिद्र रहेगा। श्राप दिया। और ये सुदामा ने सुन लिया कि जो इसको खाएगा वो पूरी जिंदगी दरिद्र रहेगा। और जब ये लोग गए तो सुदामा वेट कर रहे थे कि कृष्ण जी थोड़ा सा सो जाएं। और जैसे ही कृष्ण जी की आंख लगी, सुदामा ने सारी पोटली खा ली। कि भगवान अगर दरिद्र रह गए तो दुनिया का क्या होगा। इसलिए उसने पूरी की पूरी पोटली खा ली, एक भी नहीं छोड़ा चना। और इसलिए उसकी जिंदगी में पूरी जिंदगी दरिद्रता रही। भगवान के चने चुराए ऐसा नहीं है। भगवान को बचाया दरिद्रता से, ऐसा है। तो जब रुक्मणी जी ने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने बोला ये जितना वैभव है ये इनकी इनकी कृपा है। इन्होंने नहीं बचाया होता तो कुछ ना होता। सो जब हम एग्जाम्पल देते ना सुदामा और कृष्ण की मित्रता का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, ये एक एपिटम है, इट्स अ बेंचमार्क। कि उसमें हमने यही देखा कि कृष्ण जी ने कितना करा सुदामा के, हमेशा आज तक। कभी हम ये समझ नहीं पाए कि सुदामा ने कितना करा कृष्ण जी के। उनकी किस्मत की सारी दरिद्रता अपने लिए ले ली। सो ये दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ने बहुत सारे रिलेशनशिप्स हम देख रहे हैं। बहुत सारी, मतलब भाई देखा, पति पत्नी देखी, पति देखा, दुश्मन भी देखा, दोस्त देखा। तो दोस्ती के दो एग्जाम्पल्स बहुत फिनोमिनल हैं जो हमने देखे रामायण और भागवतम। तो ये सुदामा की कहानी, सो दैट एवरीबडी एटलीस्ट हु इज ऑन दिस क्लास शुड नो कि सुदामा was a very 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 dear friend of Lord Krishna, and he was a very devoted friend of Lord Krishna. हम उनकी डिवोशन तो सुनते हैं, मगर ये नहीं देखते कि क्या सैक्रिफाइस किया उन्होंने भगवान के लिए। आपको खाने पड़े वो चने तो खाएंगे आप। कौन खा सकता है, हाथ खड़े करे। भगवान के लिए चने कौन खाएगा। जिसको पूरी जिंदगी दरिद्रता मिले, तो वो सुदामा। दूसरी दोस्ती का एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल महाराज दशरथ और जटायु की। महाराज दशरथ और जटायु बहुत अच्छे दोस्त थे। बहुत गहरा गहरी दोस्ती थी। एक बार लड़ते लड़ते महाराज दशरथ स्वर्ग में लड़ रहे थे, घायल हो गए, गिर गए। तो ऊपर से गिर रहे थे, जटायु ने उनकी जान बचाई थी। और तब से वो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो महाराज दशरथ, अब महाराज दशरथ की कहानी क्या है।
पता है किसी को? एनीबडी नोस? वो पिछले जन्म में मनु थे और उनको वरदान भगवान से मिला था, और इसके लिए भगवान उनके घर आए। वो कहानी फिर सुन लेंगे, मगर today I want to talk a little bit about friendship. तो महाराज दशरथ और जटायु बहुत अच्छे मित्र, और ऐसा बोलते हैं कि जब महाराज के यहाँ, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के यहाँ जब भगवान पैदा हुए, जब भगवान ने अवतार लिया, तो उनकी उम्र करीबन 60,000 वर्ष की थी। 60,000 years old. He was 60,000 years old. So 60,000 की उम्र थी, और तब भगवान राम ने अवतार लिया और चारों भाइयों के साथ आए, और आने का कारण एक पुत्रकामी यज्ञ हुआ, और यज्ञ में से अग्नि देवता खीर का कटोरा लेके निकले और बोला कि ये अपनी रानियों को दे दो। तो वो खीर का कटोरा अग्नि देवता लेके निकले। कुलगुरु कौन थे? गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ ने खीर का कटोरा लिया, और खीर का कटोरा फिर, एंड एवरी सिंगल पॉइंट इन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, अग्नि देवता ने खीर का कटोरा किसको दिया? पहले राजा को नहीं दिया, गुरु को दिया। गुरु माध्यम है बीच में भगवान के आने के लिए, और हर जगह। तो अ, गुरु को दिया, और गुरु ने महाराज दशरथ को खीर का कटोरा दिया। जब इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था, तो ऑब्वियसली एवरीबडी वाज इनवाइटेड, स्पेशली द डियर फ्रेंड्स वर इनवाइटेड, स्पेशली जटायु वाज इनवाइटेड। तो जब महाराज दशरथ के हाथ में खीर का कटोरा आया, तो उनकी नजर सबसे पहले जटायु पे पड़ गई, और उन्होंने बोला कि मित्र, तुम ये ले लो, तुम्हारे भी कोई संतान नहीं है, आधा इसका भाग तुम ले लो। तो जटायु ने बोला, किसी को नहीं दी थी ये खीर किसी को नहीं दी महाराज दशरथ ने। पहले बोला जटायु को, मित्र इसका एक भाग तुम ले लो। तो जटायु ने बोला कि ये इस उम्र में क्या, तुम ये तुम्हारे लिए है, तुम इसको अपनी रानियों को बांटो, मेरे को क्या करना है, मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज दशरथ ने फिर बहुत उसको इंसिस्ट किया, नहीं नहीं, तुम लो एक, दोनों दोनों साथ में पिता बनेंगे, इतनी बूढ़ी उम्र मेरी भी है तुम्हारी भी है, साथ में पिता बनेंगे, साथ में पिता का सुख लेंगे, तुम भी लो इसका एक भाग। तो जटायु बहुत संकोच करके बहुत मना करे कि नहीं, मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चा होगा तो गीद होगा ना, गीद थे ना, गीदराज जटायु, तो ये गीद का बच्चा तो गीद ही होगा, तो इसको करने का कोई फायदा नहीं। तो फिर भी महाराज दशरथ ने फिर बोला कि नहीं, ये आपको लेना ही पड़ेगा। तो जटायु ने बोला, खीर तो मैं नहीं लूंगा, पर एक वचन दे दो मुझे। क्या वचन लिया महाराज दशरथ से? कि जो तुम मेरे को देना चाहते हो पोर्शन, पहला पोर्शन, इस पोर्शन का, ये इस भाग का, खीर का जो भी पुत्र होएगा, वो तुम्हारा नहीं, मेरा अंतिम संस्कार करेगा। तो बेटे का एक ही राइट रहता है ना, मतलब पिता क्यों बच्चा, एक बेटा बेटा हो, बेटा बेटा अंतिम संस्कार करे। तो गेदराज जटायु ने उस समय महाराज दशरथ से वचन लिया कि जो सबसे पहला उस भाग का पुत्र होगा, कौन हुए उस भाग के पुत्र? राम जी। जो उस भाग का पुत्र होगा वो मेरा होगा, और वो मेरा अंतिम संस्कार करेगा। और ऐसा ही हुआ।
जब महाराज दशरथ स्वर्ग सिधारे तो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भरत जी आए। सबसे बड़ा बेटा अंतिम संस्कार करता है। महाराज दशरथ का सबसे बड़ा बेटा कौन? भरत। इसलिए उनका अंतिम संस्कार भरत जी ने किया और राम जी जंगल में थे और जटायु का अंतिम संस्कार राम जी ने। अंतिम संस्कार की उनको परमिशन नहीं मिली, वो क्योंकि ऑलरेडी राम जी किसके बेटे हैं? हम बोलते हैं दशरथ के बेटे हैं, पर किसके बेटे हैं? वो जटायु के बेटे हैं। सच ब्यूटिफुल लाइक nuance there, very beautiful nuance of friendship. And again, मतलब आप सोचिए कितनी मर्यादा है कि उन्होंने खीर ली नहीं। सुदामा ने कभी भगवान को बताया नहीं कि उन्होंने चने खाए हैं। तो नहीं, दोस्ती में हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, ऐसा नहीं है। कितनी बार जताते हैं? एक बार करते हैं तो 500 बार जताएंगे। ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। मैं लेके गया था ना तुम्हें, मैं तीर्थ लेके गया था ना, वो तीर्थ भी अपने सर में मर लेते। डिडंट आई टेक यू टू दिस प्लेस? डिडंट आई टेक यू? डिडंट आई गेट यू टू डू दिस? है ना? और अगेन लाइक आई सेड कि भगवान का चरित्र, भगवान की चर्चा, भगवान की कहानी सुनने में ना, हर जो भी रिलेशनशिप हो, जैसी भी हो, उसकी एपिटम, उसका एक बेंचमार्क कैसा होना चाहिए। वेरी नाइस, एक्सलेंट। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस। So cultivate at least one friendship in your lifetime. एक जिसके लिए तुम चने खा सको। ऐसा दोस्त कोई और आदमी नहीं हो सकता, उसको भगवान ही होना पड़ेगा। So become friends with the Lord so that you're able to have his companionship. All right guys, बड़ी देर हो गई, आज यही कहानी खत्म करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत आगे आगे। बाकी भी दोस्त हैं भगवान के थोड़े, जैसे सुग्रीव दोस्त बना, जो कि भूल ही गया क्या करना है ना? भूल गया। लक्ष्मण जी ने बाण उठा लिया, भगवान ने बोला मारना मत, रुक जाओ, मारना मत, कहीं गलती से मार दिया, इसने काम करना है, मारना मत, सिर्फ डरा देना। सो फिर भगवान के भक्त, भगवान के भाई, भगवान के दोस्त सभी बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर ऐसा सखा भाव किसी और के साथ दिखता नहीं है जो भगवान का रहा हो, राम जी का, जैसा सुदामा और कृष्ण जी का है। ऐसा सखा भाव कहीं हमें और देखने नहीं मिलता। तो जब सखा भाव की परिभाषा होती है तो सुदामा और कृष्ण की एक मिसाल दी जाती है कि सुदामा और कृष्ण जी की दोस्ती वैसी दोस्ती होनी चाहिए। पर ये दोस्ती हमें कभी समझ में ही नहीं आई, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं कि उसमें सुदामा ने क्या किया। हमने तो देखा उसने चोरी की, भगवान सो गए तो उसने चने खा लिए, और फिर उसकी वजह से वो दरिद्र हो गया। हमने तो इतना ही देखा। उसके पीछे की कहानी जब तक हमें पता नहीं, तब तक हमें यही लगेगा कि सुदामा को थोड़ी देर के लिए ग्रीड आ गई थी, वासना, थोड़ी सी, बचपन में थोड़ी सी वासना। ये तो कोई भी समझ सकता है, एंड भी जस्टिफाइड है। हमने जस्टिफाई भी कर लिया उसको अपने ही दिमाग में। तो सुदामा तो बड़ा अच्छा था, बच्चों बच्चों में तो कभी कभी भूख लग जाती है, ज्यादा खाने का मन करता है, तो उसने खा लिया। वी डिडंट थिंक सुदामा वाज अ बैड कैरेक्टर एवर। डिड एनीबॉडी एवर थिंक सुदामा वाज अ बैड कैरेक्टर? ना, ये भगवान की कृपा है कि चोरी भी करी भगवान के दोस्त ने, तब भी हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। जहाँ पे कृपा राम की होवे,
उस पे क्या करते हैं, सभी लोग कृपा करते हैं। तुम भी कृपा कर रहे हो सुदामा पे, क्योंकि चोरी उसने की, और तुम जस्टिफाई करो कोई बात नहीं, छोटा बच्चा था, खा लिया, कोई बात नहीं, पर सुदामा बहुत अच्छा है। किसी ने सोचा सुदामा खराब है? एक बार भी सोचा सुदामा खराब है, गलती किया? कोई बात नहीं, गलती से हो गया, हमने सबने माफ कर दिया उसको, जबकि हमें कहानी भी नहीं पता। तो ये तो भगवान की कृपा है, इतनी भगवान की कृपा है कि हम सबने उसको माफ, जो पता ही नहीं है हमें कि क्या किया सुदामा ने, तब भी हमने उसको माफ कर दिया। हमें सुदामा अच्छा ही लगता है। तो ये तो भगवान की कृपा है, और ऐसा अगर भगवान के हम दोस्त बन जाए तो ऐसा ही रहेगा, सब लोग कृपा करेंगे। गलती भी हो जाएगी तो माफ कर देंगे। ज्यादातर हमारी परेशानी क्या होती है, हमसे गलतियां हो जाती हैं, कुछ ब्लंडर्स हो जाते हैं, है ना। तो जो गलती भी हो जाएगी तो दुनिया भी माफ कर देगी। और जब भगवान साथ में नहीं रहेंगे, जो भगवान का दोस्त नहीं है, वन हु डज नॉट हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड, तो उसको कोई माफ नहीं करेगा। उसने कभी गलती की भी ना हो, जैसे मैंने बताया रावण कभी गलती नहीं की, पंडित था, उच्च कोटि का ब्राह्मण, गलती नहीं की कोई, माँ को भी लेके आया तो लक्ष्मी माता को लेके आया लंका, कोई गलती नहीं की उसने, जाके पूरा स्थापना की, हवन किया, यज्ञ किया भगवान का, और उनको आशीर्वाद देके आया क्या, विजयी भव। तो ब्राह्मण था उच्च कोटि का, कभी कोई गलती नहीं की, पर उसका कैरेक्टर क्या था, भगवान से उल्टा चल रहा था। तो उस कैरेक्टर में भगवान से उल्टा चल रहा था, किसी ने माफ किया आज तक उसको? आज तक पुतला बना के और जलाया जाता है। So ये main takeaway from today's class that I would want everyone to take. You become friends with God. Even if you make a million mistakes, nobody will remember. You will still be considered good, auspicious, good. People will be very forgiving for your mistakes. और जो तुम उल्टा चल रहे हो, ईगो में चल रहे हो, गलती ना भी करो तो भी लोग तुम्हें उल्टा ही समझे। भगवान से पलट के अगर चल रहे हो, तो भगवान से तो हर साल पुतला जलाया ही जाएगा, चाहे वो उच्च कोटि का ब्राह्मण हो, चाहे कभी कोई गलती ना की हो। चाहे एस्ट्रोलॉजी परफेक्ट हो जैसे मेघनाथ की थी, चाहे स्वर्ग का राज कर रहा हो, तीनों लोगों का राजा था, तीनों लोगों का राजा था रावण, तब भी तब भी उसको पुतला बना के जलाया जाएगा। फिगरेटिव। सोसाइटी विल ऑलवेज find and hold you responsible whether or not you made a mistake। और जिसने गलती करी भी हो, भगवान के साथ चल रहा हो, उसकी गलतियां आम आदमी भी नजरअंदाज कर, उसकी गलती किसी को दिखेगी ही नहीं। और यही चीज हम बोलते हैं, जैसे ना आदित्य हृदय कभी बता रहे होते हैं, तो आदित्य हृदय में भी यही बोलते हैं, भाई तुम सूर्य भगवान की पूजा करो तो यही होगा, नाम तुम्हारा कभी खराब नहीं होगा। सुदामा का नाम खराब नहीं हुआ, सूर्य नारायण है ना, नारायण है, नारायण भगवान। जो नारायण की पूजा करे उसका नाम कभी खराब नहीं होता, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। ठीक, क्वेश्चंस?
All right, guys. I'll see you next class. Didi, you do have a Didi, can I ask something? हाँ बेटा. आपने बोला कि cultivate one strong friendship, right? So obviously, I'll be honest. I'm probably not someone who has a very close friend. I have a lot of good friends, but probably not a very close friend because I've always held my family more dear. So how do you, कोई तुलना तो नहीं कर सकते, but family versus friendship, वो तुलना तो नहीं कर सकते. तो कुछ सही गलत होता है क्या इसमें? Did you get my question? दोस्त है या दोस्त नहीं है, भगवान को तो फ्रेंड बना सकते हो. हम्म. फैमिली से ऊपर कोई आ सकता है तो भगवान तो आ ही सकता है ना. हम्म. You can have an ongoing relationship with God. I have never had too many friends, and the friends I've had also had no and just like my parents, my friends also had no way to understand who I am and what I am and how to even deal with me, right? Because सारे टाइम ही सर के ऊपर से बात निकल रही है या हम्म. completely different dimension में conversation चल रही है. So even my friends had the same problem as my family. They couldn't understand what is happening here. For a long time, even I couldn't understand what is happening here. Right? But still, God can still be your friend, no? Because Yeah. there is no scope for misunderstanding there. जिसने बनाया उसको तो पता ही होगा ना क्या बनाया है, Yeah. क्या नॉनसेंस बना के खड़ी करी है. Yeah. उसको तो पता ही है ना हमारे सारे गुण अवगुण, डर और सभी पता है उसको. तो कभी फ्रेंडशिप क्या होती है, जहाँ हम सब कुछ शेयर करें. यही बताया ना मैंने, शेयर करना चाहिए. महाराजा दशरथ की कहानी सुनाई मैंने. तो इफ गॉड इज योर गुड फ्रेंड तो भोग लगाने से की क्या दिक्कत है. तुम मटन खा रहे हो तो मटन खिलाओ भगवान को बिठा के, और तुम अगर खीर खा रहे हो तो खीर खिलाओ भगवान को बिठा के. भोग लगाने में क्या दिक्कत है अगर भगवान तुम्हारे दोस्त Correct. है ना. एंड ऑल्सो Hmm. देर इज एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग इन दैट स्पेस. बिकॉज भगवान को तो पता ही है ना क्या क्या नमूना पैदा किए. माँ बाप को भी नहीं पता होगा क्या नमूना पैदा किए, उसको तो पता ही है ना क्या पैदा किए. सो व्हेन आई से फ्रेंडशिप, I don't. In fact, my soft nudge is that please embrace God at least, and that is the easiest role that you can embrace Him in. Yes. है ना. क्या क्या तरीके से भगवान के साथ रह सकते हैं, कोई बताए कितने रूप होते हैं, क्या भाव रह सकते हैं. एनीबडी नोस. जी, सखा भाव तो यही फ्रेंडशिप वाला हो गया, और एक माँ मतलब पेरेंट का भाव होता है, उसको वात्सल्य से, वात्सल्य तो रस हो गया पर उसको, और गुरु का भाव तो आपने बताया था, उसको पहले मैंने नहीं सुना था, वो आपने एक कहानी सुनाई थी जो कौन सा. वो डांट डांट के पढ़ाते थे, गुरु वो का. डांट डांट के भगवान को पढ़ाते थे. भगवान से कोई भी रिलेशनशिप बनाओ, तो चाहे भगवान बच्चे बन जाए, चाहे दशरथ की तरह आप भगवान के पिता बन जाओ, चाहे आप भगवान को पिता बना लो, पिता समान, माँ समान, पिता समान. भगवान को आप भाई बना लो, है ना. इसकी भी कहानी मैंने एक बार सुनाई थी, कौन सी क्लास में याद नहीं. क्या भगवान को आप बहन बना लो, बेटी बना लो. एक कहानी है बहुत अच्छी, जैसे राधिका, सुनाई मैंने आपको कभी. एक सेठ हुआ, उसके 3 बेटे थे. वृंदावन का सेठ था, मुझे वृंदावन की चर्चा हो रही है तो वृंदावन के सेठ के 3 बेटे थे और 3 बेटे बड़े हो गए, बहू. तो उसको हमेशा दुख रहता था कि बहू और बेटे कितना पूछते हैं, एक बेटी होती तो मेरा ध्यान रखती, तो मेरे को पूछती. तो उसको हमेशा ये, जब जिसको जो मिलता है उसको कम लगता है, ये आम सी बात है ना. जैसे चीकू भी बोलेगी एक बेटी होती तो ज्यादा अच्छा होता, तो 2 बेटे. और पीयूष तो बोलेगा ही बोलेगा एक बेटी हो जाती तो वाह वाह, फिर तो सुधर ही जाता, फिर कोई चांस नहीं था इसके बिगड़े रहने का, है ना. तो जो नहीं होता तो वो हमेशा ऐसे अखरता है कि भाई एक बेटी हो.
तो वो सेठ बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, बहुत दान धर्म करता था, फिर भी उसको ये हमेशा लगता था एक बेटी होती, एक बेटी होती। तो एक बार एक संत आए तो उनके घर रुके, तो फिर वही वो अपना रोना, एक ही रोना कि एक बेटी होती ना तो मुझे कोई पूछता। हम्म, तो क्या हुआ उस दिन, संत ने बोला तुम वृंदावन में रहते हो, तुम ऐसा करो ना, राधा रानी कोई बेटी बना लो। तो उसको बात समझ में आ गई कुछ। अब संत की महिमा है, कभी कभी बात समझ में आ जाती है, हर कोई बोलता है तो समझ में नहीं आती, कभी कभी कि कहाँ से आवाज कान में पड़ी, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो उसकी महिमा है, उसको समझ में आ गया, तो उसने बहुत बड़ी सी एक तस्वीर बनाई राधा रानी की, और उसको फिर रोज वहीं पर जाए, वहीं पर बैठे, वहीं पे बात करे, रोज भोग चढ़ाए, सब करे। तो राधा रानी वो बड़ा खुश, राधा राधा नाम जपते, राधे राधे, पूरा टाइम उसका अच्छे से कटने लगा भक्ति में। और जब बेटी का अभाव होता, ट्रिप करने की बजाय वो वहां पर उस कमरे में, राधा जी के कमरे में जाके बैठ जाता। तो पुराने जमाने की बात है, उस समय, अब छोटे बच्चों को तो अब पता नहीं होगा, पर पुराने जमाने में ना चूड़ी पहनाने वाले आते थे। चूड़ियां इतनी बड़ी बड़ी नहीं पहनी जाती थी, छोटी छोटी चूड़ियां कलाई में एकदम लग के। आ, हर किसी का हाथ इतना सॉफ्ट नहीं होता, मैं तो किसी भी साइज की चूड़ी पहन सकती हूँ, पर तब पहले पहनाने वाले आते थे, जिससे कि वो दबा दबा के अपना चूड़ी पहना देते थे अलग अलग, जो आपको, और वो चूड़ी पहनी रहती थी, जब तक चूड़ी वाला नहीं आएगा आपकी चूड़ी चेंज नहीं होगी। तो चूड़ी वाले ऐसे, तो एक एक बार उस सेठ के घर में चूड़ी वाली लेडी आई। तो घूंघट का समय था यहाँ पे, वृंदावन यूपी का एरिया ना, सब घूंघट वाला एरिया है। तो चूड़ी बदलवाने सब आ गए, तीनों बहुएं आ गई। तो तीनों बहुओं ने चूड़ी बदलवाई, और फिर राधा रानी भी अपना एक घूंघट लेके एक हाथ आगे कर दिया, उन्होंने भी अपनी चूड़ी बदलवा ली, के पिताजी के घर में चूड़ी वाला है, चूड़ी बदलवा लेते हैं। तो शाम को चूड़ी वाली दुकान पे गई पैसे लेने के लिए, तो सेठ ने 3 के पैसे निकाल के दे दिए। तो वो बोली आज तो मैंने 4 चूड़ियां बदली हैं। बोले 4 बदली है, अच्छा तुम 3 के तो ले जाओ, और मैं पता करता हूँ। ऐसे करके वो घर आ गए, और घर आए तो राधा जी ने दर्शन दिया कि मेरे पिता के घर में मैंने चूड़ी पहनी और पिताजी ने चूड़ी के पैसे नहीं दिए, और जाके कंप्लेन किया पिताजी को कि मेरे चूड़ी के पैसे नहीं दिए आपने, क्या गलती हो गई, आपने बेटी माना कि नहीं माना, कि एक बिटिया को इतनी चूड़ी नहीं पहना पाया आप। वो सेठ पागल हो गया, उसी समय जाके खोजा उसकी और सत्य कहानी है, खोजी उसकी कि कहाँ चूड़ी वाली रहती है। बोली बड़े भाग्य तेरे, तूने राधा जी के हाथ में चूड़ी पहना दी, कितने अच्छे भाग्य, और मैं कितना भागा कि मैंने घर में बेटी बनाई और उसको चूड़ी नहीं चढ़ाई कर। खैर, सो एक कहानी है, बोलते हैं कि सच सत्य घटना है, पर whatever। तो किसी भी भाव से आप भगवान को अपने बेटी बना के रख लो, बेटा बना के रख लो, भाई बना के रख लो, बहन बना के रख लो, माँ बना के रख लो, पिताजी बना के रख लो, और कुछ संभव ना हो तो दोस्त बना के रख लो। बाकी सब रिश्तों में संकोच होता है, दोस्ती में कोई संकोच नहीं होता, तो दोस्त बना के रख लो। हम्म। और कई लोग तो उससे भी आगे दुश्मन भी बना के भगवान को रख लेते हैं, वो रिश्ता भी अच्छा है, उसमें भी वैकुंठ धाम तो मिल ही जाता है, जैसे रावण ने बनाया, हिरण्यकश्यप ने बनाया। तो भगवान के साथ जुड़े रहने के लिए कुछ, सिर्फ भक्ति की एक श्रेणी नहीं है, भक्त तो है ही, पर भक्त भी अलग अलग, मतलब आप कैसे, कोई भी रिलेशनशिप हमेशा डिवोशन की रिलेशनशिप, नो, यू कैन बी डिवोटेड इन एनी रिलेशनशिप, you can be devoted in friendship, you can be devoted as a son, you can be devoted as a daughter, you can be devoted as a sister, as a brother, as a mother, as a whatever, right? तो खाली एक भक्त और भगवान की रिलेशनशिप के अलावा भी आप भगवान के साथ कोई भी रिलेशनशिप में, मैंने कहानी सुनाई थी गुरु की, अब बना भगवान को सिखाने लगो,
अगर भगवान आपके स्टूडेंट है तो आपको तो भगवान से ज्यादा आना पड़ेगा ना। तो ज्ञान लेने का ये भी बहुत अच्छा तरीका है, भगवान को स्टूडेंट बना लो। अपने आप ही भगवान अपना प्रबंध खुद ही करेंगे, है ना। अब तुमसे सीखना है तो कुछ ना कुछ तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा ना पहले, ऐसा। सो अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं, और है ना, सबसे इजी रिलेशनशिप टू हैव गॉड एज योर फ्रेंड, वेरी इजी। What comes naturally is for me to have God as my parent, not so much as a friend. But maybe you feel comfortable God as a friend. Why not? Since that is one space in your life which is completely empty, it doesn't have anybody occupying it. तो माँ बाप भाई बहन तो Why सब not? है, तुम भगवान को दोस्त बना लो, क्या दिक्कत जी, है ना। nice. So many other relationships also ना, lover, I didn't even go to that. पूरा पूरा वृंदावन ही उससे भरा हुआ। All right. Any questions? Any other questions? Tanya, you were saying something? maybe I was saying if you have time to speak to you, तो मैं अभी हाँ, आ जाऊँ। ठीक। All right, guys. Thank you so much. Have a nice week. I'll see you next week. Namaste. थैंक यू दीदी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते दी।